اور خبر تفصیل سے بڈگام کے نارول علاقے کے گاوسا ماگام کے نزدیک CRPF اہلکاروں کی فائرنگ میں ایک عام شہری کی ہلاکت ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق گلمرگ سری نگر ہائی وے پر ایک ناکہ پارٹی نے آج صبح تقریباً 10:15 بجے اپنی نجی گاڑی میں سوار ایک شہری کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ نہیں رکا تو آگے موجود ایک اور ناکہ پارٹی نے اسی شہری کو رکنے کے لیے کہا، پھر بھی وہ نہیں رکا اور مشکوک طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تب CRPF اہلکاروں نے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائی اور ایک گولی کار ڈرائیور کو لگی۔ مذکورہ شخص کو علاج و معالجے کے لیے SMHS اسپتال سری نگر منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ مہلوک ماگام سے ناربل کی جانب جا رہا تھا۔ مہلوک کی شناخت مکھاما بیروا بڈگام کے رہنے والے میراج الدین شاہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد SSP بڈگام کے علاوہ CRPF اور فوج کے اعلیٰ افسران نے جائے واقعہ کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ اسی دوران بڈگام میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی۔ CRPF ایک فائرنگ میں واقع پیش آتے ہی پورے ناربل، ماگام، مکھاما، کاوسا اور دیگر علاقوں میں سراسیمگی کا ماحول پھیل گیا اور لوگ سڑکوں پر جمع ہوئے۔ جب عام شہری کی ہلاکت کی خبر پھیل گئی تو ان مقامات پر احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔ مکھاما میں بھی مرد خواتین گھروں سے باہر آ کر احتجاج میں شامل ہوئے۔ بعد میں کئی جگہوں پر پولیس، CRPF اور احتجاجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجیوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس نے مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے ان علاقوں میں سیکیورٹی کو سخت کیا گیا۔ احتجاج کے مقامات پر سڑکوں پر خاردار تاریں بھی بچھائی گئیں۔ جموں کشمیر میں ہر گزرتے پل کے ساتھ کورونا وائرس کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق آج مزید 34 افراد میں کورونا وائرس پایا گیا ہے۔ ان میں سے 25 کا تعلق کشمیر سے ہیں اور بقیہ جموں سے۔ اننت ناگ سے آج 19 معاملے سامنے آئے۔ ان میں سے 8 ڈسٹرکٹ پولیس لائن اننت ناگ سے ہیں۔ وہیں بڈگام سے مزید 7 افراد میں کورونا وائرس پایا گیا۔ جموں سے 5 افراد میں وائرس پایا گیا۔ کلگام سے 2 افراد اور بارہمولہ سے 1 پازیٹیو کیس آیا ہے۔ نئے معاملے کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں کورونا وائرس کی مجموعی تعداد 968 ہو گئی ہے۔ وہیں آج اس وبا سے ایک اور شخص کی موت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اب 11 ہو گئی ہے۔ وہیں لداخ کی اگر بات کریں تو لداخ میں بھی آج ایک معاملہ سامنے آیا۔ لداخ میں اب 21 معاملے ہیں۔ ان میں سے 19 لیہ سے ہیں اور 2 کرگل سے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی کشمیری بیرون ملکوں و ریاستوں میں درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب انتظامیہ کی جانب سے ان افراد کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ان افراد کو ان کے آبائی اضلاع میں کوارنٹین میں رکھا جاتا ہے اور ٹیسٹ منفی آنے کے بعد گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پیش سری نگر سے ہمارے چیف رپورٹر پرویز بھٹ کی یہ رپورٹ۔ بیرون ریاستوں سے آ رہے افراد کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے مختلف اضلاع میں کئی ویلنس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ سری نگر ضلع کی اگر بات کریں تو یہاں ان افراد کو TRC کووڈ ویلنس سینٹر میں رپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ TRC کووڈ ویلنس سینٹر کو ضلع انتظامیہ اور ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز چلا رہے ہیں۔ ان سینٹرز پر کافی ہجوم دیکھا جا رہا ہے کیونکہ باہر سے کشمیری طلبہ، مزدوروں اور دیگر افراد کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ضلع سری نگر سے وابستہ افراد کی یہاں اسکریننگ اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر ان کو کوارنٹین سینٹروں میں بھیجا جاتا ہے۔ ان افراد کے نمونوں کی رپورٹ آنے تک کوارنٹین سینٹروں میں ہی رہنا پڑتا ہے اور منفی نتیجہ آنے کے بعد گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سری نگر کے باشندوں کو اس سینٹر پر رپورٹ ضرور کرنا ہے ورنہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہو رہی ہے، ایک تو سیمپلنگ ہو رہی ہے اور ایڈمنسٹریٹو رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ ایڈمنسٹریشن رجسٹریشن کے بعد if the teams have finished the sampling they will put them into the quarantine centers، اور جو بھی ہمارے کوارنٹین سینٹرز ہے اس کے لیے ہماری ٹیم ہے، یہاں پہ 3 ٹیمیں ہیں، لیب ٹیکنیشینز ہے، فارماسسٹس ہے، تو یہ جا کے they will do the sampling in quarantine centers۔ بیرون ریاستوں سے واپس آ رہے افراد کی دکھ بھری کہانیاں ہیں کیونکہ سفر کے دوران ان افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم ان افراد کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات ضروری ہیں۔ ان افراد نے شکایت کی کہ TRC میں اچھی طرح سینیٹائزیشن نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں کورونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔
ये तो करना ही है, ये हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, ये कोई हम किसी को नहीं कह सकते, ये गलत है, हमें ताउन करना चाहिए इसके साथ। यहाँ की बात करूँ तो अभी तो हमें उतना टाइम लगा नहीं, यहाँ पर अभी स्क्रीनिंग हुई है, बस हमने फॉर्म भरा है, स्क्रीनिंग हुई है, तो उतना मुझे कोई, हाँ सैनिटाइज़र ज़रूर होने चाहिए थे यहाँ पर, बट सैनिटाइज़र का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, तो हम अपने घर से जो लेकर आए उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। एटलीस्ट सैनिटाइजेशन का थोड़ा आपको ख्याल रखना था कि अगर यहाँ कोई पेशेंट है तो इमीडिएटली सैनिटाइज हो जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस बात पर काफी जोर दे रही है कि बैरून रियासतों और मुल्कों में फंसे कश्मीरियों को ईद उल फित्र से पहले घर वापस लाया जाए। उधमपुर तक रेल खिदमात और बांग्लादेश से एयर सर्विस इसी कोशिश का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पे तैनात है पूरे गेयर्स में, और लगातार कोशिश यही हो रही है कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो है जो बाहर दरमंदा कश्मीरी हैं वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं ईद पे। तो कोशिश सरकार की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पे हो और बिना टेस्ट किए कोई अपने घरों में ना जाए। और दूसरी ओर जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के हवाले से जो श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ होटल्स हैं जिनमें 3 स्टार होटल्स भी आते हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन इनको रखा जा रहा है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। बारामूला में भी बैरून रियासतों व मुल्कों से दरमांदा तलबा, मजदूरों और दीगर अफराद को लाया जा रहा है। अब तक करीब 600 अफराद को बारामूला वापस लाया गया। इन अफराद को जिले के मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया है। गुज़श्ता शाम 200 अफराद को वापस लाया गया। इनको इन जोसेफ और DPS स्कूलों में रखा गया है। ये अफराद अपना क्वारंटीन यहाँ मुकम्मल कर लेंगे। इन अफराद ने अपने सफ़र की कहानी न्यूज़ 18 के साथ शेयर की। इन अफराद का कहना है कि लखनपुर और सांबा में उनके साथ ठीक से सलूक नहीं किया गया। उन्होंने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पानी तक नसीब नहीं हुआ। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि दरमांदा लोगों के साथ गलत बर्ताव करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। तहम बारामूला इंतज़ामिया का कहना है कि ज़िले में इन अफराद को तमाम तर सहूलत फराहम की जा रही है। अपील करता हूँ, जो भी बुरे हालात जम्मू में हो रहे हैं हमारे साथ, वो सरासर नाइंसाफ़ी है और लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और ये सब झूठ बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। किसी को बिस्तर नहीं होता है, किसी को कोई कम्बल नहीं होता है, किसी को कोई चीज़ नहीं होता है कि आदमी बैठ सके और वहाँ आराम से। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बसों में बिठाते हैं, रास्ते इतने गंदे हैं। यहाँ पे मैंने 200 लोगों की फैसिलिटी क्रिएट की हुई है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसासत से, और यहाँ पे हम 200 बच्चों को रख रहे हैं। और इनके लिए यहाँ पे ही सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर ही हमने खाने पीने का इंतज़ाम रखा है ताकि प्रॉब्लम ना हो, टाइम पे खाना मिले और अच्छा खाना मिले। नटशल में ये अराउंड 400 लोग होंगे जो अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं टोटल। और 1100 मुसाफिरों को लेकर एक खुसूसी ट्रेन कल दिल्ली से जम्मू पहुंचेगी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। 50 दिनों के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर कोई मुसाफिर ट्रेन आएगी। पेश जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू रेलवे स्टेशन पर कल 50 दिनों के बाद मुसाफिर ट्रेन आएगी। लॉकडाउन की वजह से गुज़श्ता 50 दिनों में एक भी ट्रेन यहां नहीं आई और न ही यहां से कोई ट्रेन रवाना हुई। ताहम इस दौरान कुछ ट्रेनें आर्मी जवानों को लेकर आती थी। वजारत रेलवे ने जैसा कि फैसला किया है कि दिल्ली से 15 शहरों को AC कोच ट्रेनें जाएंगी। इन 15 शहरों में जम्मू का नाम भी शामिल है। इस सिलसिले में कल एक ट्रेन जम्मू पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1100 मुसाफिर सवार होंगे। पुलिस, सिविल और रेलवे के आला ओहदेदारों ने आज तमाम इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर एक मुसाफिर की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होगी। इनको अपने मुतल्लका अजला में भेजा जाएगा और टेस्ट का नतीजा आने तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। हर चीज़ को एक तयबत तरीके के कारण एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया गया, राइट फ्रॉम देयर एंट्री इनटू दी स्टेशन, और जब तक अपने घर में, और वहाँ पे जो एडम क्वारंटाइन सबको किया जाएगा उनको व्यवस्था की गई ताकि जब रिजल्ट आने के बाद उनको नेगेटिव है तो अपने घर में जाएंगे। देखिए, कोई भी ट्रैवलर चाहे यहाँ से आ रहा जब वहाँ, उसके लिए ये है कि सोशल डिस्टेंस रखे, मास्क पहने, हवा को आना जाना जो उसका ठीक रहे, और हैंड्स वॉश करता रहे और तरीके से जाए, उसमें कोई जल्दबाजी ना दिखाए। सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ IRCTC की कंफर्म टिकट पे आपको स्टेशन पे एंट्री मिलेगी। बाकी लोग ना आएँ, ये विनती है मेरी कि बिना टिकट
कोई वेट लिस्टिंग और RSC टिकट नहीं बट रही है, बिना टिकट कोई ना आए। सिर्फ़ और सिर्फ जो टिकट्स बुक हो रही हैं वो IRCTC की ऐप, IRCTC की वेबसाइट पे बुक हो रही हैं। सिर्फ IRCTC के थ्रू ही टिकट्स बुक कराएं। कोई स्टेशन पे ना आए टिकट बुकिंग के लिए, कोई ये ना सोचे कि वो बिना टिकट स्टेशन पर आ पाएगा, क्योंकि एंट्री नहीं हो पाएगी। इंतजामिया का ये भी कहना है कि बगैर मास्क मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। साथ ही सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कंफर्म टिकट होने पर ही मुसाफिर को इजाज़त दी जाएगी। तकरीबन 50 दिन के बाद कोई मुसाफिर ट्रेन इस जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है, और ये ट्रेन उस वक्त पहुंच रही है जबकि कोविड का खतरा अभी चारों तरफ फैला हुआ है। ज़ाहिर तौर पर सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेलवे का महकमा हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पैसेंजर कल यहाँ पे आए उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, और उसके बाद उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लेना है कुछ दिन के लिए, उसका जो पूरा अमल है वो ठीक तरह से चले और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस की वजह से एक और मौत हो गई है। मुतासरा शख्स का ताल्लुक जम्मू से था। जम्मू के दगियाना से ताल्लुक रखने वाले 72 साल शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। जम्मू में आज भी कई मामले सामने आए हैं। उधर जम्मू में लॉकडाउन का असर लगातार जारी है। लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की नकल हमल काफी कम देखने को मिली। ताहम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें आज खुली देखने को मिली। बेशतर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद ही रहे। रेड जोन्स में सख्त पाबंदियां आयद हैं। 17 मई के बाद लोग लॉकडाउन में नरमी की उम्मीद कर रहे हैं। 5 अप्रैल को सीआरपीएफ ने राजौरी में बुजुर्ग की मदद कर उनको एयरलिफ्ट किया था और चंडीगढ़ भेज दिया था। बुजुर्ग शख्स को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। डॉक्टरों ने उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया था, मगर लॉकडाउन की वजह से ये खानदान परेशानी का शिकार हो गया था। मगर सीआरपीएफ इस बुजुर्ग की मदद के लिए सामने आया। उधर दूसरी जानिब मुंबई में इस बुजुर्ग का बेटा काम करता था। अपने वालिद की बुरी खबर सुनकर बेटे ने साइकिल पर सफर शुरू किया। गुजरात में सीआरपीएफ ने इसे रोका। कहानी सुनने के बाद सीआरपीएफ ने राजौरी टीम से राब्ता किया। मालूम होने पर बेटे को भी सीआरपीएफ ने बड़ौदा से एयरलिफ्ट किया। वजीर हुसैन को आज इलाज मुआवजे के बाद राजौरी वापस लाया गया। उन्होंने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। वजीर के बेटे आरिफ ने कहा कि सीआरपीएफ की वजह से उनके वालिद आज सेहतयाब होकर वापस आए हैं। और जब मेरे को मालूम पड़ा उधर से मेरे वालिद साहब को ऐसे अटैक पड़ा है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, और मैं उधर से तकरीबन 2 दिन मैंने वेट किया। मैंने बहुत कोशिश किया, आगे कोई गाड़ी नहीं मेरे को मिला। फिर मैं साइकिल लेकर निकल आया हूँ। फिर रास्ते में एक आदमी ने मेरा वीडियो बनाया, दीपेश सर ने, और वो सोशल मीडिया में डाला। उसके बाद सीआरपीएफ को मालूम पड़ा और सीआरपीएफ ने मेरा बहुत हेल्प किया। और 72 बटालियन है जो मेरे घर पे गए। मेरे घर से मेरे डैड को उठाया, राजौरी में लेके आए। राजौरी से एयरलिफ्ट किया जम्मू में, और जम्मू से PGI चंडीगढ़ में इलाज करवाया उनका, और सर्जरी भी करवाया। और मेरे को बड़ौदा से पिक किया और लेके आए मेरे को चंडीगढ़ तक। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ 72 बटालियन का और 51 का, जिसने मेरे सीआरपीएफ ने जो मेरा हेल्प किया है, मेरे डैडी का। और उनका मैं यानी शुक्रिया अदा मैं कर ही नहीं सकता। जितना खर्चा वो लोग किए हैं, हमको जैसे आर्मी को सहूलत मिलती है वो सेम हमको उधर हर चीज़ दी है, खाने के लिए फूड्स वगैरह हर चीज़। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। शोपियां में भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जिले में अब तक 8 गांव को रेड जोन करार दिया गया है। रेड जोन्स में रह रहे लोगों को जरूरी अशिया की किल्लत के साथ साथ मेडिकल खिदमात भी नहीं मिल पा रही हैं। लोगों का कहना है कि रमजान मुबारक के इस महीने में इनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि एक तो उनके पास पैसे नहीं हैं और दूसरा उन्हें गांव से बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि उनके बारे में सोचा जाए और मुश्किलात का इजाफा हो सके। एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है 108 पे उसको कॉल करनी पड़ती है। वो उस पेशेंट को यहाँ से शोपियां की तरफ लेके जाती है और वो पेशेंट वहाँ पे बहुत परेशान होता है, वो घर की तरफ नहीं पहुँचता है। रेड जोन करार दे गए त्रेहगाम कुपवाड़ा में आज इंतजामिया ने थोड़ी सी राहत देते हुए लोगों को नकलो हरकत की इजाज़त दी, जिसके दौरान लोगों ने बैंकों से रुकमात हासिल करने के लिए
बैंकों का रुख किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए लोगों को कुर्सियां फराहम की। लोगों ने इस इकदाम को लेकर इंतजामिया और बैंक के ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। अगरचे इंतजामिया ने क्वारंटीन सेंटरों में तमाम लाजमी सहूलियात दस्तियाब रखने के दावे कर रही है, ताहम आज JNV स्कूल पहताशी कुपड़ा में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए बैरून रियासत से आए तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें सेंटर में लाजमी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन ने तलबा के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। JNU में है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंदौर भोपाल से आए हैं अभी, और अभी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो आना बाकी है। तो और हम यहाँ अभी नियर अबाउट हम 200 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और यहाँ पे जहाँ रखा गया यहाँ पे बिल्कुल ये पैथेटिक कंडीशन। यहाँ पे वाशरूम देखो, वहाँ पे बिल्कुल गंद पड़ी है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। पे जब हम 6 बजे पहुँच गए तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, बाहर रोड पे रखा। उसके बाद में जब हम लोगों ने इनसे बात की तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ की हालत कैसी है, वॉशरूम की, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। एक रूम में 27, 26, 27 लोगों को बैठा के रखा है। कहाँ है वो सोशल डिस्टेंसिंग? कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, एक रूम में 2 पर्सन होने चाहिए। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक क्वारंटाइन सेंटर में 20 लोगों को रखा गया है। अवेलेबल है ही नहीं, आपको शायद और एक दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो कोई हमारी सुनता ही नहीं। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमारी जो ये परेशानी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो ये जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें सबसे अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। अब कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ कमी रहती है, लेकिन हमारे पास जो भी फैसिलिटी है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक JNV का सवाल है, 150 लोगों की फैसिलिटी है वहाँ पे, और इस वक्त वहाँ पे 110 के करीब ही जो इनमेट्स हैं। तो ये जो इनका जो कहना है उसमें कोई सदाकत नहीं है। और तब भी हम इंश्योर करेंगे कि उनका सफाई का अगर कोई मसला होगा वहाँ पे तो वो हम देखेंगे। वैसे आज तक जो भी लोग वहाँ पे आए वो सेटिस्फाइड रहे, और कोई शिकायत हमारी उनके बारे में। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा कि खाकरुबों और काउंसिल के दीगर अमले की बकाया तनख्वाहों को जल्द ही बागजार किया जाएगा। डायरेक्टर लोकल बॉडीज रियाज वानी का हवाला देकर हिलाल शाह ने कहा कि कोरोना की वबाई सूरत हाल के दौरान म्यूनसिपल अमला अहम किरदार अदा कर रहा है और उनके मुतालबात जायज़ थे, जिनको डायरेक्टर व दीगर मुताल्लिकीन की काविशों से हल किया गया है। वज़ीर के काउंसिल के खाकरुबों और दीगर मुलाजिमीन ने गुज़श्ता कई दिनों के दौरान तनख्वाहों की बागजारी और दीगर मराद के मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए थे। हमारा जो स्टाफ है, एक हकीकत है, इनका कई महीने से जो वो पे जो था, जैसे परमानेंट का 2-3 महीने का, और जो कैजुअल स्वीपर्स है उनका भी काफ़ी टाइम से था। हकीकत ये है कि कई अरसे से हमारा जो डिवल्यूशन ग्रांट है वो 61 लाख मंथली म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग को आता था। यहाँ पर मैं उस हिसाब से जो हमारा पे जो महीने का वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए जाता था, तो 6.5 करोड़ हमें साल का जो है ये डिफिसिट पड़ता था पे का। मगर यहाँ पर मैं ज़रूर शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मोहतरम रियाज साहब जो आए हैं, अभी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारे हैं, उनके आने के बाद उन्होंने हमारा जो है डिवल्यूशन ग्रांट बढ़ा के 90 लाख तक पहुँचा दिया। तो उससे भी काफ़ी हमें फ़र्क पड़ा, मगर फिर भी हमारा 3 करोड़ का लाइबिलिटी जो है साल का कम पड़ता है, जो हम इंटरनल रिसोर्सेज से मीट आउट करते थे, मगर लॉकडाउन की वजह से वो हम नहीं कर पाए। मैं मशकूर हूँ ज़ाती तौर वो वन टाइम कोविड की वजह से डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने अश्योर किया मुझे कि वो हमने ट्रेजरी में भेजा, जो भी सैनिटेशन वालों का एज ऑन डेट जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर किया जाएगा। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में एक मीटिंग की। मीटिंग में B2, V2 और BMDP प्रोजेक्ट्स में अब तक मिली कामयाबी का जायजा लिया। डीसी ने इस दौरान कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई प्रोजेक्ट्स मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद तमाम प्रोजेक्टों पर दोबारा तेज़ी से काम शुरू किया जाएगा। मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई कि ज़रूरी कामों को तरजीह दी जाए और उनकी निशानदही करें। महकमा सेहत के कोविड नामजद अफसर कश्मीर डॉक्टर वसीम कुरैशी और ज़िला तरक्यात कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट के अलावा डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने ज़िले में कायम कई क्वारंटीन मराकज़ का जायज़ा लिया। इस टीम ने मुस्बत अफराद की बेहतर निगहदाश्त, खाने पीने की अशिया बहम पहुँचाने के लिए एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की। टीम ने डिग्री कॉलेज कुलगाम में कायम क्वारंटीन सेंटर का भी जायज़ा लिया। डीसी ने कहा कि अभी तक
120 सरकारी इमारतों को कोविड सेंटरों में तब्दील किया गया है। जिला गुलगाम में कोरोना वायरस के नए केस आने के बाद 11 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। मजीद मुस्बत केस सामने आने के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से हजारों लोगों को क्वारंटीन किया गया। चंद रोज कबल कस्बा कुलगाम के नायकपुरा को रेड जोन में रखा गया था। दर्जन मुस्बत केस सामने आने के बाद मेन टाउन के छतबल इलाके को भी रेड जोन करार दिया गया। मजीद नए केस सामने आने के बाद मुल्का इलाकों में खौफ का माहौल बना हुआ है। इंतजामिया और पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत दी है। कश्मीर हार्ट मिक्स प्लांट्स और ओनर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी पैकेज का खैर मक़दम किया। एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस पैकेज में इस शोबे के कई बरसों से ज़ेर इल्तिबा तकरीबन 400 करोड़ रुपए के कर्जजात का ख्याल रखा जाएगा। खान ने मसाइल उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप बार बार हम सुन रहे हैं कि आप कमज़ोर वर्गों के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ और सारी इंडस्ट्रीज़ की राहत के लिए उनके ऐलान करते हैं, उनके पैकेज आपने ऐलान किया कल भी, उससे पहले भी। तो क्या कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो ठेकेदार, प्लांट ओनर्स और सारे लोगों की राशि जो 400 करोड़ से ज़्यादा अभी राज्यपाल शासन के पास रुकी पड़ी है, क्या उसमें उसका भुगतान करने के लिए कोई प्रावधान है? मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले आप उस कर्जे का भुगतान करवाएंगे जो 4 सालों से हमारे पूरी समुदाय की राज्यपाल शासन के पास। पीएम मोदी ने कल इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया। लोगों ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम की सताइश की। शोपियां के समाजी कारकुन मुबारक अहमद सूफी ने पीएम के इस पैकेज का इस्तकबाल किया। उन्होंने पीएम से अपील की कि एप्पल इंडस्ट्री के लिए भी किसी पैकेज का ऐलान किया जाए। इस वक्त मुसीबत झेल रहा है उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैं खासकर गुजारिश करता हूं सरकार से कि वो खासकर शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है, जो फ्रूट के साथ वाबस्ता है, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। अभी फ्रूट सड़ा हुआ है, मंडियों में पड़ा हुआ है, कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसका खास ख्याल रखा जाए। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी ने कल पैकेज का ऐलान किया है, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये बड़ा अप्रिशिएटेबल कदम इसने उठाया है, इसके लिए मैं उसके जिला बारामूला में दरमानदा मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए कांग्रेस ने इरादा किया है। कांग्रेस के जिला सदर बारामूला ने डीसी बारामूला से एक मेमोरेंडम के जरिए इतला दी कि कांग्रेस जिला इंतजामिया के साथ ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दरमानदा मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए खर्च उठाने के लिए तैयार है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने जिला मजिस्ट्रेट बारामूला को एक एप्लीकेशन दी जिसमें ये लिखा है कि जो बाहर के मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए आए थे उनको अपने अपने घरों तक हम पहुँचा सके। जो भी उनका खर्चा है वो हम बर्दाश्त करें कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन हमको परमिशन दे कि उनको ले जाने के लिए हम कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सोशल मीडिया पर जामिया मिल्लत तालिबा सफूरा जरगर के साथ नाशाइस्ता अल्फाज के इल्जाम में किश्तवाड़ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। जिले के चेरजी इलाके का रहने वाला सुनील कुमार शान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सफूरा जरगर के अहल खाना ने शिकायत दर्ज की थी। मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की। इन लोगों का कहना है कि मुल्क का कानून हमें खवातीन के साथ बाइज्जत पेश आने का सबक देता है। आपको बता दें सफूरा जरगर पुलिस हिरासत में है। सफूरा जरगर के खिलाफ जो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया उसके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट फाइल की है पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में। पुलिस ने बोला कि हमने वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी है उनके खिलाफ। डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी भी आदमी का प्रोटेस्ट करने का। उन्होंने एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में, पीसफुल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उस पर उनको यूएपीए के तहत बुक किया गया जो बिल्कुल गैर कानूनी है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन है उनके खिलाफ। मैं अपील करूंगा अथॉरिटीज से कि उनको इससे बरी किया जाए और उनकी हेल्थ कंडीशन को देखकर उनके साथ इंसाफ किया जाए।
लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गांदरबल पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज एसएसपी गांदरबल की क़यादत में पुलिस ने 7 कमर्शियल ड्राइवरों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर इनको गिरफ्तार किया गया। ड्राइवरों के साथ साथ 7 टिप्परों को भी सील किया गया। पुलिस ने जिले के तौहीद चौक, दुधहामा और वाहिदपुरा में इनके खिलाफ कार्रवाई की। डीसी गांदरबल ने आज भांग और अफीम की काश्त को रोकने के लिए मीटिंग तलब की। मीटिंग में डीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि इससे जुड़े तमाम अफराद का पता लगाया जाए। उन्होंने अफसरान को यह भी हिदायत दी कि पुलिस की मदद से उनका पता लगाया जाए और नारकोटिक्स के खिलाफ मुहिम शुरू की जाए। उन्होंने जिले में मंशियात की पैदावार को तबाह करने की भी हिदायत दी। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघवलंगर की हिदायत पर तहसील इंतजामिया अवंतीपुरा ने आज कई इलाकों में गैर कानूनी तौर पर काश्त की गई खसखाश की फसल को तबाह कर दिया। इस मौके पर नायब तहसीलदार अवंतीपुरा अल्ताफ हुसैन और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इसमें वेरी मच पर्टिकुलर है कि वो इस मिनीस को इस पूरे डिस्ट्रिक्ट से इरेडिकेट करे और उसके लिए आज उन्होंने यहाँ लारकीपुरा, पदगामपुरा, डांगरपुरा और दूसरे इलाकों में एक एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से, पुलिस की कोलैबोरेशन से एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द अदर फील्ड फंक्शनरीज ऑफ द रिव्यू डिपार्टमेंट, तो आज हमने ये मुहिम शुरू कर दी। इससे पहले ही हमने लोगों को इस बारे में आगाह किया हुआ था कि वो ये खुद हटाएं, क्योंकि जब उन्हें आज खुद नहीं हटाया तो आज हम इस बात के लिए मजबूर हो गए कि हम एक डिस्ट्रक्शन ड्राइव शुरू कर दें। डीसी बारामूला ने कई ट्रेड बॉडीज और कमर्शियल सरगर्मियों से वाबस्ता अफराद के साथ मीटिंग की। लॉकडाउन और ईद उल फितर के दौरान उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू की। इस दौरान डीसी ने कहा कि हेल्थ एडवाइजरीज का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। उन्होंने ट्रेड बॉडीज पर जोर दिया कि समाजी खिदमत करके लोगों की मदद करें। मीटिंग में एडीसी, सुपोर और ट्रेड बॉडीज के कई नुमाइंदे शामिल थे। लॉकडाउन के दौरान लोगों की खिदमत के लिए कई रज़ाकार और समाजी तंजीमें सामने आई हैं। हज़रत शेख दाऊद खिदमत खल्क फाउंडेशन भी लोगों की मदद में पेश है। इस वबा के दौर में ये तंजीम लोगों की काफ़ी मदद कर रही है। ये तंजीम ज़रूरतमंदों को 1 महीने का राशन फराहम करती है। आज ही नहीं, ये तंजीम हर मुश्किल वक्त में लोगों की खिदमत के लिए सामने आती है। जुड़ना चाहता है या इसकी माली मामलत करना चाहता है, वो हमारे दफ्तर वाक़ा ज़ियारत बतमालू साहब के पास आए या आज खुद हमारे दिए हुए अकाउंट नंबर में जमा कर सके, ताकि हम ज़रूरतमंदों तक ये मदद पहुंचा सकें। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिरवा में हामिला खवातीन के लिए सर्जरी करने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस के तनाजुर में बिरवा के इस अस्पताल में हामिला खवातीन के ऑपरेशन करने के अमल को मुअत्तल किया गया था। बिरवा और आसपास की हामिला खवातीन को इलाज मुआलजा करने और सर्जरी कराने की गर्ज से बडगाम या दूसरी जगहों का रुख करना पड़ रहा था। तमाम महकमे सेहत ने एक अहम कदम उठाते हुए बिरवा के सब जिला अस्पताल में दोबारा हामिला खवातीन की सर्जरी कराने का सिलसिला शुरू किया। लोगों ने इस इक़दाम पर बिरवा अस्पताल इंतजामिया की सताइश की। सहूलियत नत पेवान बडगुम गसन, दिक्कत गसान तौर वसनस मज खसनस मज वत जान ट्रैफिक रुकावान तनस लपोर हालात खराब। ये स्टार्ट गो आय सहूलियत ये नजदीक पेवान असल सहूलियत बिर हस्पताल पे दवा ववा ये दितो किथे पोषण हालातन मन। 2 महीने से हमने यहाँ कोल्ड सर्जरी स्टाफ की हुई थी। अब यहाँ हमारे जो ब्लॉक में प्रेग्नेंट पेशेंट्स थे उनको बड़ी दुश्वारी होती थी। अब हमने उसके लिए हालात साजगार किए उन सब पेशेंट्स को जिनको हमने टेस्ट किया और जो नेगेटिव आए हैं, और हमने हॉस्टल में भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, उनके लिए अलग वार्ड रखा, अलग स्टाफ रखा। तो पिछले हफ्ते से हमने यहाँ LSCS ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो हॉस्टल में जो हमारी तरफ से फैसिलिटीज़ होती है, चाहे रेफरल ट्रांसपोर्ट हो, डाइट हो, मेडिसिन हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो सब बिल्कुल उनको फ्री मुहैया रखा हुआ है। LHDC करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फैरूज अहमद खान ने बैरून रियासतों में फंसे हुए तलबा और दीगर अफराद को न घबराने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से सभी लोगों की वापसी का अमल जारी है। उन्होंने ज़ायरीन की वापसी के मुनासिब इंतजाम करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। साथ ही करगिल ड्राइवर्स के मसले पर डिविजनल कमिश्नर लद्दाख को भी तनकीद का निशाना बनाया। से 30 के बैच में जो है श्रीनगर से भी बसेस आना शुरू हो जाएगा। मैं अपने जो जितने भी हमारे
लोग बाहर हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रोसेस हमारा शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ये टाइम मैनर फेस मैनर पर ख़त्म होगा और सब सेफली घर पहुँचेंगे, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्मी के हम बहुत मशहूर हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स उन्होंने राजस्थान में प्रोवाइड किया, जहाँ पर हमारे जो ज़ायरीन थे जिनको वहाँ पे डेढ़ महीना रखा, वहाँ पे उनका लुक आफ्टर किया, हम उनके मशहूर हैं। और सेकेंडली इंडियन एयरफोर्स के हम बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने हमारे ज़ायरीन को चाहे वो जोधपुर में हो, गाज़ियाबाद में, वहाँ से उन्होंने लेह में भी लाया, और उन जो हमारे गाज़ियाबाद में है आपका स्पेशली उनको करगिल में भी लैंड करवाया। तो हम उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी और आपके इंडियन एयरफोर्स के हम बहुत ही मशहूर हैं। डीसी लेह ने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। डीसी लेह सचिन कुमार ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि लोग एडवाइजरीज का एहतराम नहीं करते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि शायद कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं होम क्वारंटीन का। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ सभी लोग जो आपको इंस्ट्रक्शंस मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस और जो इसमें हैं वो आपको फॉलो करना है। कोई भी एक सिंगल केस अगर आता है हमारे पास वायलेशन का होम क्वारंटीन का, इमीडिएटली आपके खिलाफ पीनल एक्शन होगा ही होगा, और जो और चीज़ें होंगी आपको हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखेंगे मैंडेटरी, फिर जो मतलब चीज़ें हार्श हो जाएंगी। तो एक इस प्रेस के माध्यम से आई वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी पीपल दोज हु आर इन होम क्वारंटीन की आप सभी लोग होम क्वारंटीन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। आज की बात यह है, पहले हेल्थ है। हेल्थ में यही मामला है कि लोकल जो लोग हैं, जो गाँव से आते हैं, पार पलंग एरिया से आते हैं, उनको एड्रेस होनी चाहिए हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ कहाँ एड्रेस होंगे? वो यहाँ लोकली एड्रेस होते हैं, उनको जम्मू नहीं जाना है या मेडिकल कॉलेज जोड़ा है, वहाँ अगर ओपीडी खुल जाए। जितनी मुश्किलात यहाँ के लोगों को पड़ी है, एक तो एक तरफ से लॉकडाउन, दूसरी तरफ से गाड़ियों का न होना, और तीसरी तरफ से डॉक्टर मैसर न होना, चौथी तरफ से ओपीडी न होना। तो अब वो ऊपर वाला ही जानता है कितनी मुश्किलात यहाँ के लोगों ने उठाई और किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, गरीब आवाम और यहाँ के भी फ़िलहाल जो मुत्तसिल इलाके हैं, बहुत सारे लोग इस मुश्किलात में हैं, बीमार हैं, घरों में हैं। तो इसके मुताल्लिक हम चाहते हैं कि बाज़ाब्ता अच्छी तरह से ये प्रोसेस शुरू हो जाए। मागाम हंदवा के लोगों ने आज कुपवाड़ा में एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंस का लिहाज भी रखा। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने महकमे देही तरक्की में कई साल काबिल तामीराती काम किए हैं, लेकिन आज तक रुकमात वागजार नहीं किए जा रहे हैं। उधर असिस्टेंट कमिश्नर देही तरक्की कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इन्हें रुकमात वागजार की जाएंगी। शोगुल ने उन तीनों को उठाया, शोगुल में बोलते गाड़ी समेत कि चोगुल और हंदवार के डिफरेंस 2 किलोमीटर है, मागाम और हंदवार के डिफरेंस तकरीबन 10 किलोमीटर है। फिर आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन की मजबूरी हमें ये इसीलिए हम यहाँ आए, वरना हम ये नहीं आते। दूसरी प्राणी है कि मागाम में जो ब्लॉक है, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर 6 तकरीबन 17, 18, 19 का पैसा हमने काम किया, पैसा भी नहीं है। 14 ऐसा बोलता है गवर्नमेंट, बोलता है हमने डेवलपमेंट के लिए पैसे छोड़े 14 FC के, वो सरपंच और वीएलओ के अकाउंटों में है, काम किए हुए हैं 7 महीने, अभी पैसा भी नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुए छूटे। और रिश्वत सबसे ज्यादा है सर, 5J के 4% है, 5% स्टैंड है। फिर आ जाओ यहाँ SCD ऑफिस, यहाँ भी वेरिफिकेशन ऑफिस है, वो भी पैसे के बिना नहीं उठता है सर। वो अगर DC साहब ने भेजा है उसको हम कहाँ से ला के पैसे देंगे? काम तो पक्का है, काम तो हमने 100% सही किया है। इंटरनेट की अदम दस्तियाबी से तंग आकर तलबा और उनके वालिदैन ने आज अवंतीपुरा में खामोश एहतजाज किया। उनका कहना था कि लॉकडाउन के चलते उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इंटरनेट पर आयत पाबंदी हटाई जाए ताकि तलबा आसानी से ऑनलाइन क्लासेस में शमूलियत कर सकें। किताब हम डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी प्रोफेसर से नहीं मिल सकते, कोई इंस्टीट्यूशन खुली नहीं है, कोई लाइब्रेरी खुली नहीं है, ऑनलाइन क्लास बंद हो रहे हैं, ये जो जूम क्लास नहीं चल रही है, हर तरह हम मुश्किलात में फंसे। पूरे 2 साल से हमारे बच्चे 11th और 12th में, ये उनका कैरियर है सर, लेकिन उनका कैरियर दिन ब दिन तारीख होता जा रहा है। हमारी मोदबाना गुजारिश है ड्यूकाम से, रियासी हुकूमत से तो इकदाम उठाए ताकि शोपियान और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के बच्चे भी इस नूर से मुस्तफिद हो जाए।
कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन से तामीराती कामों पर भी बुरे असरात मुरतब हुए और मजदूर तबके का रोजगार मुतासर हुआ था। पुलवामा में भी अब इंतजामिया की जानिब से मनरेगा के कामों को दोबारा शुरू करने से मजदूरों ने काफ़ी राहत पाई है। पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में मनरेगा और दीगर तामीराती काम दोबारा शुरू हुए हैं, जिससे न सिर्फ दही इलाकों में इल्तवा में पड़े तामीराती काम मुकम्मल किए जा रहे हैं, बल्कि इन इलाकों से वाबस्ता मजदूरों का रोजगार भी बहाल हुआ है। इस दौरान समाजी फासला रखने पर जोर दिया जा रहा है। बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने नरेगा काम को छोड़ दिया है, उन्होंने इजाज़त दिया है काम करने के। हमारे पास हम अभी 10, 15, 20 मजदूर हम यहाँ अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। हमें भी थोड़ी सा ईद का दिन आने वाला है, हमें भी थोड़ा खर्चा आए, पानी आएगा, अयाल है, हमें अपना कुंबा को पालना है। जिला रामबन में कोरोना लॉकडाउन की आड़ में महकमे R&B की जानिब से एक ठेकेदार को रामबन नाले की प्रोटेक्शन का काम म्यूनसिपल हुदूद में कमेटी की इजाज़त के बगैर अलॉट किया गया, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी रामबन ने सख्त एतराज़ करते हुए मौके पर जाकर पुलिस व म्यूनसिपल कमेटी के मेंबरान के हमरा काम बंद करवा दिया। वहीं मौके पर पहुंचने पर म्यूनसिपल कमेटी अहदेदारान ने पाया कि करोड़ों रुपए लागत के काम में गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर म्यूनसिपल कमेटी ने सख्त नोटिस लेते हुए मुलविस ठेकेदार के खिलाफ जिला इंतजामिया और LG इंतजामिया से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। चुपके से रातों रात ये काम लगाया है, जिसकी म्यूनसिपैलिटी को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। आज जैसे ही मेरे नॉलेज में ये बात लाई गई, मैं तुरंत यहाँ पे अपनी टीम को लेकर यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आया। ये जो ऐसा मुश्किल भरा दौर है उस पर काम लगाया है, इसको हम कालाबाजारी बोलते हैं। इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन तो होगा ही होगा इसके खिलाफ, लेकिन मैं आपको ये भी बोलता हूँ इसके पूरे काम की सैंपलिंग की जाएगी। ये सारा काम जो है सब स्टैंडर्ड है, रामबन के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारा सब स्टैंडर्ड काम है, दिख रहा है। इसकी ऑलरेडी हमने कॉपी अपने LG साहब को, अपने DC साहब को दे चुके हैं। आज हम फिर से वो कॉपी जो है देने जा रहे हैं। निवेदन है LG साहब से कि भाई तुरंत से तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितना भी गवर्नमेंट एक्सचेकर को इन्हें नुकसान किया इनकी सैलरी से भरपाई की जाए, ताकि आइंदा इस किस्म की भ्रष्टाचार की गतिविधियों को रोक लग सके। यूपी उर्दू अकेडमी की जानिब से कश्मीर के चरार शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान नक़ाद गुलाम नबी कुमार को उनकी तहक़ीक़ी व तनक़ीदी किताब उर्दू की असरी सदाएँ पर 10,000 रुपये के इनाम से नवाजा गया। वाज़िर के गुलाम नबी कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। इस मौके पर उन्हें प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम, डॉक्टर मुश्ताक कादरी, डॉक्टर मुश्ताक हैदर और डॉक्टर इमाम आज़म के अलावा वादी के अदीबों ने मुबारकबाद पेश की है। वाज़िर के गुलाम नबी कुमार रोज़नामा लाजवाल जम्मू और रोज़नामा नया नज़रिया उज्जैन से भी वाबस्ता हैं। इसके अलावा उनकी इदारत में 6 माही पंच आब भी शाया होता है। लॉकडाउन को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए पुलिस बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। वहीं लोगों को खुश रखने के लिए पुलिस ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। लॉकडाउन की वजह से कठुआ के गांव राजबाग में घर में बंद 6 साला बच्ची का जन्मदिन मनाने पुलिस उसके घर पहुंची। घर वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बेटी का बर्थडे था आज, तो जो यहाँ के प्रियंका मैम है तो उन्होंने आज बच्चे के लिए केक वगैरह लाया और गिफ्ट लाया और घर में आके बर्थडे सेलिब्रेट किया गुड़िया का। कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है सर। आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? नहीं सर, बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए ऐसा किया, हमारी गुड़िया के लिए सर ऐसा किया स्टाफ ने, बहुत अच्छा लगा प्रियंका मैम ने। बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अपनी जो हैबिट्स है, लॉकडाउन की वजह से जो भी उनकी हैबिट्स है वो थोड़े से रेजिस्ट हो गए, वो ऐसा ना हो। मतलब हमें भी खुद भी बहुत अच्छा लगा और फैमिली वालों को भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। और जो लिटिल गर्ल जिसका आज बर्थडे है, शी इज़ लाइक सरप्राइज्ड एंड शी इज़ इन द एयर। इवन आप अभी भी नोटिस करें, शी इज़ इन द एयर। कठुआ के डाडवली गांव के किसानों ने बेमौसम बारिश की वजह से खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलने पर खेतों में ही फसल को आग के हवाले किया। किसानों ने कहा कि पहले मौसम की वजह से धान की फसल खराब हुई, अब गेहूं की फसल भी खराब हुई। कम से कम 80% जो हमारे डडोली गांव के लोग हैं ना, उनकी फसल सारी बर्बाद हो गई है। कोई 20% है जो लोग बचे हैं। तो रावणों वालों के पास भी गए, एग्रीकल्चर वालों के भी पास गए, फिर हमने कहा ये आपने गर्दोरियाँ करनी है रावणों वालों को, आप 20 मार्च के बाद स्टार्ट करते हैं गर्दोरी। तो आप DC पुंछ राहुल यादव ने SDM सरनकोट के साथ तहसील के कई इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटरों को दौरा किया। सेंटरों में रखे गए अफराद को मिलने वाली सहूलत का जायजा लिया गया। शोपियां में एक एयर कंप्रेसर मशीन के फट जाने से 2 अफराद जख्मी हो गए। लोग इसके फटने की आवाज़ से डर गए। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल में दाखिल किया गया था।
जहां से इनको श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शोपियां पुलिस ने केस दर्ज किया है। ZEO बतियाज फरीद अहमद फानी ने अपने दफ्तर में टीचर्स और तालीमी इदारों के सरबराहों की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इस वबा से निपटने में टीचर्स भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीचर्स लोगों को इस वबा के बारे में शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसको यही मैसेज दूंगा यहाँ पे कि वो इस मामले को वही सुलझा सकते हैं, क्योंकि उसने ही इनको एक नॉलेज देना है, समझाना उनको कि आप लोग किस तरह से डिस्टेंस रखें, सफाई रखें, और अगर डिस्टेंस रखते हैं तो यकीन मानिए कि इंशाल्लाह हम इस रेशो को कम करके नीचे लाएंगे। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से खानाबदोशों को नकल मकानी करने की इजाज़त मिलने के बाद कई खानाबदोश डोडा के पहाड़ी इलाकों में कूच कर गए हैं। भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के मुताबिक 450 बकरवाल ट्राइब छतरगाला पास क्रॉस करके भद्रवाह आए हैं। छतरगढ़ बड़ी बर्फ से वहाँ टपे और बर्फ से टपे और डॉक्टर आया, हमारी चेकिंग की और दवाई दी थी और सब कुछ किया हमारे साथ। और हम आगे जाना दक्षिण नाला क्या, हाँ कुछ तो और ग्रस्त है। हमको सब पता है ये बीमारी चाह रही है, डॉक्टर साहब ने हमारी चेकिंग की है और हम छतरगला टाप के जाई में हैं। डॉक्टर साहब भी आए हैं इधर, मेरी चेकिंग की है और गार्ड साहब ने हमारे नाम शाम लिख कर। मोस्टली 2 रूट्स है जो फॉलो करते हैं, एक तो जो है वो पहाड़ियों से निकल जाते हैं और दूसरा रूट जो है वो रोड्स इस्तेमाल करते हैं। जो रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका डेटाबेस जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ऑलरेडी असर में, और जो हमें लग रहा है कि रेड जोन वगैरह क्रॉस करके आ रहे हैं उनके सैंपल भी उठाए जा रहे हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हिदायत ये दी है। कंजर्वेटर साहब से भी बात मेरी हुई थी कुछ दिनों पहले कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उनको रूट करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो है वो इंटरमिंगल ना करे, आसपास के गाँव में और टाउन एरियाज़ में भी नहीं आए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो जहाँ पे ये इन नोमैड्स के बारे में जो भी खबरदारी लेनी ज़रूरी है वो हम बिल्कुल से ले रहे हैं। कश्मीर के ज़िला डोडा में हर साल की तरह इस बार भी बर्फीले पहाड़ियों को लाकर लगभग 10,000 खानाबदोश कुंभे की आमद शुरू हो गई है, जिससे कोरोना वायरस के चलते मकामी लोगों में डर का माहौल है। वहीं इंतज़ामिया ने यकीन दहानी दी है कि खानाबदोशों का इंदराज किया जा रहा है, जिसकी तस्दीक खानाबदोशों के मास्क से ढके चेहरों से हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवाह की जाई घाटी से साहिर हुसैन। फॉरेस्ट कंजर्वेटर डोडा ने गंदोह के जंगलाती इलाकों का दौरा किया। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि स्मगलर्स लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए जंगलों को काटने की कोशिश में थे, ताहम महकमे ने इनके तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। उन्होंने ज़िम्मन में मकामी अफराद के ताउन की भी सताइश की। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने जो है जंगल का नुकसान जो है होने से बचाया है। रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इन जंगलात को बचाने में हमारी मदद करें। ये उनके अपने जंगलात हैं और इनको अपनी प्रॉपर्टी समझ के जो है इनको बचाने भी नोटोरियस लोग हैं उनके खिलाफ FIR की। कुपवाड़ा जिले के कुलगाम शेरवारी के गुलाम मोहिउद्दीन नामी मजदूर का आशियाना आग की नज़र हो गया। गुलाम मोहिउद्दीन का कहना है कि सहरी के बाद अचानक उनकी मकान की छत में आग नमूदार हो गई और देखते ही पूरा मकान आग की लपेट में आ गया और घर की हर एक चीज़ जलकर तबाह हो गई। उन्होंने हुकाम के साथ साहिब सरबत लोगों से भी अपील की कि उनकी माली मदद करें। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे JK बैंक कुपवाड़ा के अकाउंट पर रकम मुंतकिल की जा सकती है। टोटल द्राव कहें गरस मज टोटल गरीब कर मजूर योर ग शाल वाल कर कह पोस रपस 5-6 सास तुम तमिस अंदर मतलब टोटल गरीब वह लकट लकट बच लिहाजा तुम वसा गवर्नमेंट ये गुजारिश कर कह रिलीफ मिलन ताकि मिले कह सहारा करान पन जिंदगी बे बस ये गरीब बोय ये बिचोर जो तल ठीक कह ये जो तल बिचोर रही कर्मत दक्षिण खोड़ कह बिचोर बनाया मसा फिर तुल अमिस द्राव कहें बिल्कुल द्रास कहें गवर्नमेंटस अगर गोस के एहसास अमिस गरीब बोस मेस बिचारिस कर खली रब सुन बस बेस कह सोरे मकलिया तला बचन अगर कह नकद ती दो नकद जिनस तमल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बात